So the session is basically around advanced server technologies. Now, these server technology here you will learn what are the different technologies that are available on for from a server standpoint, how these technologies are used, and what these technologies are all about. I will be going slow. Please, and I'm sure you will have questions around these. So if there are any questions that you have, please jot it down in the chat box right away so that you also don't forget. So we'll start. The technologies are basically ideas, innovations, and methodologies which are designed to enhance the performance or the user experience, you can say. जैसे if you are using a gaming platform, अगर आप वो गेम खेल रहे हैं and that game is keeps on buffering, it takes time, nobody आप वो enjoy नहीं करेंगे, you will change that game. Or if you are browsing on the net and downloading a video or a movie or a song, if that is it's taking time, you won't want to spend time. Or if you're just going to a website and if they're opening that website itself is taking time, so a lot of innovations have been done on the basic server technology that helps in managing the performance, scalability, security. As I always say, security is very important for these server environments. So now we will talk about some key technology enhancements that have happened on server. Virtualization. Okay, these, if you have a book and a pen, please note these things down, because as soon as you understand what is virtualization, which I will explain, you can spend some time on the net understanding about it more. And any one of these technologies or methodologies or innovations, these are all jobs. Like you can have specialization in server virtualization and have a job in server virtualization. There are OEMs like VMware, Red Hat, SUSE, who have their own technologies that can be used. तो हम इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी, VMware is the today is the current leader for hypervisor technology on servers. Similarly, desktop laptop pe end user pe it is Citrix, which does virtualization. So what is virtualization? Virtualization is a technology that allows one physical server to be used for multiple different purposes. So one physical hardware, where initially it used to be allowed to perform one particular function, is now allowed to, because of using these softwares, is allowed to have multiple different uses. Details I will explain going forward, but virtualization is using one particular item into multiple technologies. Like you can use a one physical server as your print server and as your backup server. So you are using one physical hardware. एक server को हम दो चीजों के लिए use कर रहे हैं. एक print के लिए भी use कर रहे हैं. We are using it for backup. Or maybe you can use it for as an email server and as a file server. What are these servers? We will talk about this going forward. But then using multiple, different technologies on one physical hardware is used and done through virtualization. बहुत ही simple language में मैं समझा रहा हूँ so that everybody understands it. That's what virtualization is all about. अब virtualization में hypervisors होते हैं and containers होते हैं. There are different, like I said, virtualization में VMware है, Hyper-V technology है, KVM technology है. Similarly, container also has technologies like Docker and Kubernetes. Okay, and these provide lightweight virtualization, मतलब ये छोटे scale पे करती हैं. So where you can containerize your work, एक work को अलग-अलग container में specify करके, and these are softwares that allow you to do this work. ये जो Docker है, Kubernetes है, VMware है, Hyper-V है, ये आपको allow करते हैं एक ही physical hardware को different चीजों में ये करने के लिए. Okay, now going forward, what is the different another technology? Cloud computing. Now anybody is having a server. What companies used to do is that they used to have their, everybody had to buy server, सबको अपना सर्वर खरीदना पड़ता था. हर सर्वर को चलाने के लिए उसका रेलेवेंट सॉफ्टवेयर खरीदो, उसके लाइसेंसेस खरीदो, उसको सर्वर को रखने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हो, जहाँ पे प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैड टू डू दैट. बट नाउ व्हाट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन is that, like large organizations like Amazon,
Okay, Amazon does not only sell goods. Amazon is actual business of theirs is cloud, which is very big for them. Google has Google own cloud. Microsoft has cloud. IBM has cloud. So when you see terminologies like IaaS, PaaS, SaaS, what does this mean? Infrastructure as a service. मतलब आपको अपना सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्लेटफॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपना एप्लीकेशन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके सॉफ्टवेयर पे जाके होस्ट करें, एंड विदाउट स्पेंडिंग ऑल दिस मनी, just by paying to this organization, they will give you this infrastructure and platform to host your work. And that's how it happens today. So that you don't have to have a separate data center in your office and you save a lot of money. And that was how all cloud computing is all about. So just, I will give you a couple of minutes. Think about it, cloud computing and how it helps in terms of savings. Okay. So now what is it around, IaaS, PaaS, SaaS? These are all the different technologies within cloud computing, where your infrastructure can be leased, your platform can be leased, or your software can be leased, services can be leased. Now, what is hybrid and multi-cloud? अब जब ये है ना, ये हो गया एक नॉर्मल एप्लीकेशन एक स्टार्टअप के लिए कि भैया मुझे स्टार्टअप खोलना है, तो मैं एक ऑफिस लेके एक डेटा सेंटर क्यों बनाऊं, मैं इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं? आई जस्ट गो टू वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आई बाई स्पेस फ्रॉम देम, और उस पे मैं अपना होस्ट कर सकता हूँ अपना प्लेटफॉर्म पे, उनके प्लेटफॉर्म पे अपना एप्लीकेशन या अपना डेटा या अपना जो भी मेरा काम है मैं उन पे, या अपना वेबसाइट, आई कैन होस्ट इट ऑन देम. आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ डेटा सेंटर, ऑन अ सर्वर, ऑन सॉफ्टवेयर, ऑन लाइसेंसेस. ये सब बच जाता है. So that is cloud computing. But large organizations which like banks and others, they don't want to, give out all their data because this is not in their premises. This is not in their control. तो वो कुछ डेटा, कुछ चीजें अपने ऑफिस में रखते हैं एंड कुछ चीजें आउटसोर्स ये क्लाउड पे डालते हैं. So that is called as a hybrid cloud, where you have some portion of applications which are maybe important, which are, you need to keep it more secure. So they keep it to their own organizations, and some portion which is not very important, like उनका मेल सर्वर है, प्रिंटर सर्वर है, या कुछ बेसिक डेटाबेस है, जो डेटाबेस है जो मतलब encrypted है. So these things can move on the cloud. So this is cloud computing. Please note these points down because these are the technologies. And again, cloud computing as a field has multiple jobs which you can look at. And after this session, from our WhatsApp group, we will then ask you students to tell us which you are most interested in, so that then we can go deeper into that technology and get you to learn the technology more. After my sessions, I think people who are going online and spending time, okay, are the people who will win. Okay, because it is very important कि जो हम यहाँ पे सीखें उसको रिवाइज करें, उसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो इफ यू सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, यू कैन डू रिसोर्स पूलिंग, लाइक जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो मेंटेनेंस करना पड़ता है इन सर्वर्स को. तो अगर 10 कंपनी का काम एक क्लाउड पे एक एक इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो उसके लिए 10 अलग अलग लोगों की जरूरत नहीं है, एक ही बंदा उन सारे 10 लोगों के काम कर सकता है. तो दैट्स हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इकोनॉमिकल. एक ही सिक्योरिटी है, एक ही फायरवॉल होता है दैट कैन प्रोटेक्ट एप्लीकेशंस फॉर दोस 10 यूजर्स हु आर देयर. इट नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो भी मतलब ये सिक्योर हो रहती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस दैट क्लाउड कंप्यूटिंग ब्रिंग्स. आप ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे, आप मुझे अपने चैनल में बताएंगे which of these are giving you interest and which of these you want us to have more detailed technical sessions. जो लोग जो चूज करके बताएंगे उनकी चीजों पे पहले बात, सारी चीजों पे किया जाएगा सेशंस. बट जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिसमें मैंने हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बताया है कि व्हाट इज द जॉब पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 2-3 years, तो जो आप सिलेक्ट करते हो, आप बच्चे जो सिलेक्ट करेंगे मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, सो दैट यू लर्न मोर, यू अंडरस्टैंड मोर एंड यू सिलेक्ट योर करियर फ्रॉम देयर. ठीक है, आई एम प्रोग्रेसिंग नाउ. नाउ व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग इज अगेन, अगर आप एक कंप्यूटर्स या एक सर्वर्स आप ले रहे हैं जहां पे आपके ऑफिस में काम हो रहा है,
जैसे आपके ऑफिस में 500 लोग हैं, जो आपके ऑफिस का जो सेंट्रल डेटा है, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इट्स नॉट एन एंटरप्राइज बट इट इज अ स्मॉल बिजनेस, जो एक मतलब एक कपड़े का व्यापारी है या कोई भी चीज का आप ले लो, उसके 50 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब उसका इन्वेंट्री का डेटा है कि भैया कौन कितना सामान हमारे वेयर हाउस में पड़ा है। अब वो 50 लोगों को वो एक्सेस करना पड़ेगा डेटा, उनके कस्टमर्स कौन से वो एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो 50 लोगों के लिए कंप्यूटर उनके नजदीक ही रखा जाता है उसी ऑफिस में, सो दैट उसके लिए नेटवर्क बैंडविड्थ की जरूरत नहीं पड़े। वो नेटवर्क बैंडविड्थ अगर सर्वर दूर होता है तो वो थोड़ा डेटा स्लो आता है, लेटेंसी होती है, तो वो लेटेंसी की जरूरत नहीं पड़े। और रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक टैली, अकाउंटिंग, जो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, ये लोकल रन होती है, तो उसके लिए जो नजदीक होती है, दैट इज एज कंप्यूटिंग। नाउ व्हाट इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग? So serverless computing, is allows, application developers to build and run application without managing servers. Okay. तो ये ऑन डिमांड सर्वर्स होते हैं, सो वेयर दे सर्वर्स आर एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ समवेयर, जहां पे आपको सिर्फ प्रोसेसिंग पावर दिया जाता है, एंड यू कैन यूज दैट प्रोसेसिंग पावर टू बिल्ड योर प्रोग्राम, टू बिल्ड योर एप्लीकेशन, और उसके लिए आपको सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए इसमें एडवांटेजेस भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, आपको दूसरी 100 चीजों की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वो अगर एक साथ में काफी लोगों का काम हो रहा है तो कम रिसोर्सेज लगेंगे उसको चलाने के लिए। तो ये सारे जो एडवांटेजेस है वो मिलती है सर्वरलेस कंप्यूटिंग में। बट उसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि वो बाहर है, वो दूर है, तो उसमें थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा लगानी पड़ती है, तो सिक्योरिटी एक डिसएडवांटेज है। अगर वो दूर है सर्वर, तो उसको में से डेटा आना जाना, लेटेंसी हो जाती है, थोड़ा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है उसको में। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको डिबगिंग करने के लिए भी टाइम ज्यादा लगता है। जैसे अगर आपका, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, कंपैटिबिलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है और आपको डिबग करना है कि मेरा एप्लीकेशन इस सर्वर पे प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो सर्वर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो डिबगिंग, वो उसको कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो सर्वरलेस कंप्यूटिंग, देन इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या करता है कि जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं उसको स्मॉलर और इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड कर देता है। अब मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप एक है ना, उबर राइड ले लो आप, हम उबर ओला हम सब बुक करते हैं। अब उबर में देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन बुक, नॉर्मल उबर, यू कैन रेंट अ कार, यू कैन, नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड सर्विसेज दैट यू कैन डिलीवर पार्सल्स। तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज लोग रन करते हैं। तो अब सारा चीज मैं एक ही उसमें बनाऊंगा ना, तो वो बहुत हैवी हो जाती है। एनी प्रोग्राम इज रनिंग ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इट बिकम्स हैवी। सो व्हाट दे डू इज दे मेक इट इनटू डिफरेंट, इन दैट एप्लीकेशन दे मेक इट स्मॉल पार्ट्स। सिमिलर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका फोन बैंकिंग, आप अपने फोन में से जब बैंकिंग करते हो, तो आपका अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है तो उसका एक अलग ऑप्शन होता है। तो ये चीजों को छोटे उसमें ब्रेक कर देते हैं, सो दैट इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर थिंग्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अगर आपका से एनईएफटी डाउन है, बट स्टिल आपको आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे पैसे, बट आपको अपना अकाउंट में पैसे कितने हैं अगर वो चेक करना है, तो यू कैन स्टिल डू दैट, बिकॉज दे आर ऑल इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, एक दूसरे पे रिलाइंग नहीं है। अगर सब चीज एक ही होती और एक दूसरे पे रिलाई करती, तो मेरा अगर कोई एक चीज डाउन होती तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती। बट वॉट वी आर डूइंग हियर इज वी आर breaking the application into smaller and independent services, which is allowing us to do, if one application or if one portion of that services goes down, you are still able to use the other services. So this is called microservices architecture. Questions, jot it down, put it in the chat. देखिए ये मैंने स्क्रीन पे जो डाला है, ये है मोनोलिथ आर्किटेक्चर, वेयर एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल प्रोग्राम। बट मोनोलिथ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या करता है, वो हर चीज को सेपरेट कर देता है। व्हेन इट सेपरेट्स इट, इट बिकम्स इजी। तो जैसे अगर ये पिंक वाला जो सर्विस है, अगर वो डाउन भी हो गया, तो वो आपके दूसरे 4 सर्विसेज चलेंगे। अगर आपका ग्रीन वाला डाउन हो गया तो भी आपके बाकी 4 चलेंगे, अगर आपके 2 डाउन हो गए तो भी बाकी आपके 3 चलेंगे। सो इफ दे आर नॉट टेक्निकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आपकी दूसरी सर्विसेज इंपैक्ट नहीं होती। ओके, तो अगेन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ये सारे ये सर्विसेज है, और हर चीज के लिए स्पेशलाइजेशन होता है। These specializations are not taught.
आप जब आपका जो हम बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, फिर वो कंपनी आपको ओजेटी देती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन एग्जैक्टली व्हाट दे वांट यू टू डू। एंड दैट्स व्हेन यू लर्न एग्जैक्टली जो काम आपको ऑन द फील्ड या ऑन द ऑफिस करना है। ठीक है। Automation and orchestration, this is going to be the very important topic in all our sessions. Okay, automation is very simple. Automation क्या होता है? एक ही अगर रेपिटेटिव टास्क है, ओके, जैसे अगर हम एक है ना जीमेल की साइट पे जाते हैं, जीमेल, उसमें एक सिंपल टास्क है कि यूजर क्रिएशन इज अ सिंपल टास्क। अब वो आप जाते हैं यूजर क्रिएशन में, मैं न्यू यूजर करके क्लिक करते हैं, वो आपको एक फॉर्म खोल देता है, आप अपना टाइप डिटेल्स टाइप करते हैं, ये एक जॉब वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देता है। उसके लिए कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की या कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो जो एक एकदम सिंपल रेपिटेटिव टास्क है, उस रेपिटेटिव टास्क को कंटिन्यूस परफॉर्म करना है, तो विच इज अ बेसिक ऑटोमेशन। बट देन व्हाट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्केस्ट्रेशन। अब ऑर्केस्ट्रेशन क्या आता है कि बस मल्टीपल ऑटोमेशन, मतलब अगर तीन चार अलग अलग ऑटोमेटेड टास्क हैं, कि आपने जब अपना जब इसको, ये एग्जांपल को मैं थोड़ा इलाबरेट करता हूं ऑटोमेशन से ऑर्केस्ट्रेशन पे। ऑर्केस्ट्रेशन व्हाट इट डज इज दैट व्हेन यू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, आपका वो ऑटोमेटिकली जीमेल अकाउंट क्रिएट होगा, प्लस आपका गूगल प्ले सर्विसेज एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके गूगल प्ले पे से आप जाके चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, चीजें चेक कर सकते हैं। वो आपका एक इंस्ट्रक्शन भेजता है गूगल मैप्स को कि अगर आप गूगल मैप्स डाउनलोड करें तो वही ईमेल आईडी यूज करके आप गूगल मैप्स यूज कर सकते हैं। वही सेम ईमेल आईडी पे आप अपना क्लाउड पे अपना फोन का सिम का कॉन्टैक्ट डेटा, तो वो, लेकिन ये भी सारे ऑटोमेटेड टास्क है, इसके लिए भी किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये ऑटोमेटेड टास्क है, बट देर आर जस्ट वन टास्क इज connected to multiple tasks and it automatically does it, which is a kind of orchestration. थोड़ा और अगर आप चाहो तो मैं इजियर एग्जांपल देता हूं इस पे। इजियर एग्जांपल वुड बी कि जैसे अभी एक आपने कंपनी ज्वाइन की, आपने कंपनी ज्वाइन की, कंपनी में आप जाते हैं, तो आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है आप जब ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करते हैं। अब जब आप ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करते हैं, तो अब जब आपको आईडी कार्ड दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटेड नहीं, वो फिजिकल एक्टिविटी वाला टास्क है। उसके बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फीड की जाती है और आपका एक यूजर बना दिया जाता है कि यू आर नाउ अ यूजर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। बट इन द बैक एंड दैट इज अ फर्स्ट दैट्स एन ऑटोमेटेड टास्क, एक सिंगल टास्क था, वो कंप्लीट हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन के यूजर बन गए। बट फिर ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू उसमें आपका ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी जनरेट होता है, आपके प्रिंट सर्विसेज जनरेट होते हैं, आपके नाम पे एक लैपटॉप ऑटोमेटिकली असाइन होता है। तो बहुत सारे दूसरे ऑटोमेटेड टास्क जो सिस्टम में प्रोग्राम किए गए हैं, या जिसका एल्गोरिथम या जिसका प्रोग्राम बनाया गया है, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, विच इज ऑर्केस्ट्रेशन। सिक्योरिटी, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सिक्योरिटी पे, बिकॉज सिक्योरिटी एज अ फील्ड इज अ वेरी लार्ज फील्ड। इसके लिए मैं, और इसमें अगर आपको याद है हमारे फर्स्ट सेशन में सबसे ज्यादा जो जॉब ग्रोथ है आईटी में, दैट इज अराउंड सिक्योरिटी। एंड आई थिंक लॉट ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव रीच्ड आउट टू मी डायरेक्टली दैट यू आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड फील्ड। बट ये ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड कर लें कि भाई मुझे सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नो, इट डजेंट वर्क दैट वे। टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्वर टेक्नोलॉजी, व्हाट वी आर डूइंग टुडे, and then understanding some portion of networks, because this base has to be strong, तब जाके आप उसको सिक्योर करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी इन डिटेल। आई एम पुटिंग इन सम पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, एंड आई थिंक है ना, ये चीजें ना आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, विच आई विल एक्सप्लेन। Zero trust security ensures that every access request is authenticated and regardless of the origin। मतलब अगर आप अपने आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया है, ओके, वो जीमेल अकाउंट आप अपने लैपटॉप पे से भी खोल सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे से भी खोल सकते हैं, आप एक साइबर कैफे में जाके अगर एक कंप्यूटर पे जाएं तो आप उधर से भी खोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, सिंपल explanation. There are multiple then hardware security modules. Okay, what the hardware security modules does is, यहाँ पे आपका जैसे अभी बैंक अकाउंट है, अब आप है ना अपना इंटरनेट बैंकिंग मल्टीपल जगह से खोल सकते हैं, बट वो सिर्फ आपके यूजर आईडी पासवर्ड पे नहीं चलता।
वो आपको ओटीपी भेजता है टू योर ईमेल एड्रेस और थ्रू योर फोन नंबर, या फिर वो आपको कितने बार इट यू हैव अ स्क्रीन वेयर यू हैव टू सिलेक्ट secret questions are there. So depending on what security the original manufacturer has created or your company recommends, multiple layers of securities are added. So these are security from an end user perspective. When you get into more details of security, it is very vast because हर प्लेटफॉर्म के अंदर लूप होल्स होते हैं. उस लूप होल्स को यूज करके जो हैकर होता है या जो फिशर होता है, फिशर इज somebody who डज फिशिंग, और जो आपके पैसे या आपके डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं. सो जो ये लोग होते हैं ना, वो लोग लूप होल्स ढूंढते हैं हर चीज में. और आप हमेशा देखेंगे जो नया नेक्स्ट स्कैम होता है वो पुराने स्कैम से अलग होता है. So people try to find out loopholes and try to fish money or try to hack your systems and do things like that. So to the levels of securities are also multi-function, multi-layered. तो जो हमको एज ए एंड यूजर मिलते हैं वो तो एक दो चीजें होती हैं. बट अगर जो ओरिजिनल जिधर पैसे रखे हुए हैं वो पैसे आप तक आए, वो ओटीपी आप ही को आ रहा है, किसी और को नहीं जा रहा, उसके लिए देर आर मल्टीपल सिक्योरिटी मॉड्यूल्स. उसमें हार्डवेयर होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं विच प्रोवाइड एनहांस लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी. और उसके अंदर जैसे जैसे हैकर नए लूपहोल्स ढूंढते हैं, उन लूपहोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स, नए नए सोल्यूशंस बनाने पड़ते हैं. सो दिस इज हाउ द सिक्योरिटी वर्ल्ड वर्क्स, एंड इट रिक्वायर्स योर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग टुडे. इसके ऊपर, सारी चीजों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर जब हम डिटेल सेशन करेंगे तो आपको और समझ में आने लगेगा. दैट्स वाई मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, प्लीज डोंट मिस योर सेशन, बिकॉज आप अगर एक भी सेशन मिस करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा कॉम्प्रिहेंड करना कि क्या हुआ है. अभी भी अगर किसी ने मिस किया है, आई एम अगेन सेइंग वी विल बी पुटिंग दीज सेशंस ऑनलाइन, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड पीपल टू कम ऑन द लाइव सेशन एंड लर्न इट लाइव. जैसे मैं आपको ऊपर दिखा रहा था, मैंने एक थोड़ा छोटा सा एक पिक्चर भी डाला है. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वेब एप्लीकेशंस के लिए फायरवॉल होता है. इसके लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैच बनाना पड़ता है, कुछ कुछ नया लूप होल आता है तो उसके लिए नया पैच बनाना पड़ता है. तो देयर इज एनहांसमेंट इन सिक्योरिटी दैट कीप्स हैपनिंग. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक फायरवॉल लगा दिया, एक सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर डाल दिया, खत्म हो गई. उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा क्योंकि लोग नए नए सोचते रहते हैं, नए नए लूप होल्स निकालते रहते हैं. What is artificial intelligence and machine learning? So I actually am again going a little slow because I want everybody to grasp. But still, ये चीजें नोट डाउन करो. ये जो ओवर आर्किंग टेक्नोलॉजीज है आर्टिफिशियल, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रीड करो. इट इज नॉट डिफिकल्ट. जैसे आप यहाँ पे, मैं जब आपको हिंदी में समझाता हूँ, आप जब नेट पे जाके इसको और डिटेल में रीड करोगे आपको समझ में आएगा थोड़ा और डिटेल. एंड देन व्हेन यू टेल मी ऑन द चैनल और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप that this is what you want more detailed sessions around, I will give you those sessions. Okay. Now artificial intelligence again, अगर कोई चीज का प्रिडिक्शन है कि जैसे आपने 3 बार अगर रॉन्ग पासवर्ड डाला, मतलब यू आर नॉट दी ओरिजिनल यूजर, तो ये एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है. वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि भैया इसने 2 बार रॉन्ग डाला, तो वो आपको पहले पकड़ लेगा कि हाँ, ये अगर इसने तीसरी बार डाला तो इसको ब्लॉक करना है. तो वो मॉनिटरिंग कंटिन्यूटी चलती रहती है और वो ऑटोमेटेड होता है कि भैया वो आपको रोक दे. फिर क्या होता है कि जब ये कंप्यूटर होते हैं ना, इसमें ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो सीखते हैं कि भैया अगर आज इसने एक बार किया, अगर ये मल्टीपल बार हो रहा है और मल्टीपल अकाउंट्स में एक साथ हो रहा है, मतलब कोई हैकर कुछ कोशिश कर रहा है अकाउंट्स ब्रेक करने की. मतलब जैसे आज अगर मैं कर रहा हूँ और मेरे से मिस्टेक होगी तो एक ही बार होगी और मुझे वो ब्लॉक कर देगा, मैं गया. लेकिन अगर बार बार कोई चीज, मतलब कंटिन्यूस अकाउंट्स पे कुछ हो रहा है, तो मशीन देखेगा और वो समझ जाएगा, वो सीखेगा कि भैया ये कोशिश कोई घड़ी घड़ी कर रहा है, मतलब कोई हैकर है या कुछ चीज गलत है. तो वो मशीन लर्न करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा. और डीप लर्निंग है, मतलब फिर वो और उससे सीखेगा कि भैया अगर 3 से 4 से ज्यादा बार अलग अलग अकाउंट्स पे भी हुआ है, लेकिन एक ही आईपी एड्रेस से हुआ है, मतलब एक ही लोकेशन से जनरेट हो रहा है, मतलब ये गड़बड़ है. तो ये लर्निंग ऑटोमेटिकली मशीन करता है, इसमें भी आदमी की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. एक और एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप्स आप देख लो कि गूगल मैप क्या करता है कि वो डेली देखता है कि भैया एक बंदा बांद्रा से लेके वर्ली तक गाड़ी में जा रहा है. ओके. अब वो जब सुबह 9 बजे निकलता है तो वो वर्ली तक पहुंचने को उसको 1 घंटा लग रहा है. पर जब वो दोपहर में 2 से 3 बजे जा रहा है तो उसको 35 मिनट्स लग रहे हैं. तो वो मशीन लर्न करता है कि भाई सुबह के टाइम पे मतलब ट्रैफिक आवर है,
इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। दूसरे टाइम पे दोपहर में जब जा रहा है तो कम टाइम लग रहा है, तो वो उसको लर्न करता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम सर्च डालते हो तो वो एक ऑटोमेटिकली टाइम दिखाता है कि इतना टाइम आपको लगेगा। तो दैट इज मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग कब होती है? जब कभी आप दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं और जो उसका एवरेज टाइम है 35-40 मिनट्स, अगर उससे ज्यादा लग गया, 1 घंटा लग गया, तो वो आपको पूछता है कि भाई यू आर स्टॉप, मतलब या आप रुकी हुई है आपकी गाड़ी, तो आपको, आपने देखा होगा कितने बार पूछता है कि यू बीन स्टैग्नेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, इज देयर अ प्रॉब्लम? तो वो मशीन पूछ रहा है और वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया है। तो वो लर्न करे कि भाई एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लगा। It's not that there is a problem in the route. So this is artificial intelligence and machine learning. और ये चीजें है ना इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप एक बार ये चीजें सीख के आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। दिस इज ऑल डेटा। तो इस डेटा के एनालिसिस होता है, सब चीज कंप्यूटर नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने जो हमको दिमाग दिया है, उस दिमाग ने ये सब बनाया है। तो इन चीजों को आगे चलाने के लिए भी भले ही वो मशीन कितना भी कर ले, बट वो आदमी के जितना नहीं सोच सकता, ऊपर वाले की कंपटीशन में नहीं आ सकता। तो यू नीड ब्रेन्स, and that brains is something that you can be tomorrow. I want you to be tomorrow, UMO wants you to be that person tomorrow, but आपका इंटेंट होना चाहिए वो बनने के लिए। अब देन देर इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या होता है कि एक क्लस्टर बना दिया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का या मल्टीपल कंप्यूटर्स का, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैसे होंगे? जैसे अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन है, उसके ऊपर अगर कुछ कैलकुलेशन करना है कि अगर मुझे यहाँ से, मैंने अगर एक एक रॉकेट छोड़ा जो मार्स तक जाएगा, तो अगर वो इतनी स्पीड पे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वेलोसिटी इतनी है, लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इतना पुल कर रहा है। काफी सारी उसमें चीजें होती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स 10 किलोमीटर तक इतना परसेंट है, 20 से 30 किलोमीटर तक इतना परसेंट। तो ये सारा जो कैलकुलेशन होता है, तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर लगता है। तो वैसे बड़े कामों के लिए प्रोसेसिंग पावर के लिए लगता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, विच इज कॉल्ड एन एचपीसी का क्लस्टर। तो आईटी टर्मिनोलॉजी में इसको एचपीसी बोलते हैं। मल्टीपल डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स और हाई एंड कंप्यूटर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म टास्क्स विच आर हैवी इन वर्क टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस, एंड दैट्स कॉल्ड एज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। और ये सारी चीजों पे स्पेशलाइजेशन होता है। तो एक एचपीसी क्लस्टर जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऐसे दिखता है, जहां पे मल्टीपल सर्वर्स इन अ डेटा सेंटर आर ऑल बीइंग यूज्ड टू रन वन पर्टिकुलर टास्क, और मे बी हैवी टास्क। ऐसा नहीं कि वो पूरे साल भर एक ही टास्क करेगा। मतलब 4 घंटे उसने एक टास्क किया, फिर तब तक किसी दूसरे साइंटिस्ट ने आके कुछ दूसरा डाला, या कोई दूसरे प्रोग्रामर ने आके कुछ तीसरी चीज डाली। तो इसको जो डिबगिंग या इसको जो कैलकुलेशन करना है, दैट इज कॉल्ड एज हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर। अगेन, अगर कुछ आपको क्वेरीज आ रही हैं, प्लीज पुट इट। सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कितने बार है ना हम क्या करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हार्डवेयर से ना इंसान को, मतलब हमको अलग परे कर देता है। वेयर दिस सॉफ्टवेयर डिसाइड्स व्हाट यू हैव टू डू। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप यूजर्स हैं, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है ना आपका ऑटोमेटिकली आपको डेटा से, नेटवर्क से, कंप्यूटिंग से कनेक्ट करेगा, और आपके जो टास्क हैं उसका इंफॉर्मेशन लेके आपको आउटपुट प्रेजेंट करेगा। सो दैट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज, और ये अलग अलग चीजों में काम आता है। काफी डिटेल्ड है, यू हैव टू स्पेंड टाइम टू लर्न मोर अबाउट इट। इसके ऊपर सेशन होगा, उसमें और इसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। ओके, अगेन, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सर्वर्स के बाद हम काफी सारा टाइम स्पेंड करेंगे। जब हमारे सर्वर के सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब मुझे लगता है आपका जैसे इंटरेस्ट होगा, आप मुझे जैसे बताओगे, वंस वी कंक्लूड आवर टॉपिक्स ऑफ सर्वर्स, ओके, विच इज इटसेल्फ गोइंग टू टेक एटलीस्ट मे बी 2 or 3 मोर सेशंस, उसके बाद हम नेटवर्किंग पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट एरियाज में जाएंगे। because these are basic prerequisites for you to grow ahead in in IT। आपको, अगर आप अपने करियर सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस है, आप डाल सकते हैं, वी कैन गाइड यू। ओके, बट गाइडेंस विल बी गिवन टू पीपल हु आर अटेंडिंग ऑल आवर सेशंस। जो एक सडनली एक बंदा आएगा, बिकॉज दैट इज बीइंग नोटेड बाय आवर टीम्स, कौन ज्वाइन कर रहा है रेगुलरली, हु इज and lot of people, so I know by name also now, and I know who are joining regularly. So people who are joining regularly, I will personally try to coach them,
but those people have to show intent. मुझे दिखना चाहिए कि आप इंटेंट है, इंटेंडेड है करियर बनाने के लिए, तब मैं अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करूंगा. Okay, because I also work for a very large IT multinational globally and at a very high designation. I cannot give time to everybody, and I'm willing to give time to people, but then that person has to have the intent. उसको मुझे दिखना चाहिए कि वो कोशिश कर रहा है सीखने की, वो अच्छी तरह जाना चाह रहा है, मैं उसको हेल्प करूंगा. यूएमओ उसको हेल्प करेगा, हम हमारे और मेंटर्स हैं, हम उनको भी आगे लाएंगे आपको हेल्प करने के लिए. देर आर पीपल, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर अच्छे बड़े लेवल पे हैं, they will also try to help you. So there is a lot more that is coming in and it will come with time. जैसे मैंने सेशन चालू होने से बोला था कि we are planning for grooming skills, communication and other such topics also, which will help you to better yourselves, not from only an IT education perspective but as an individual. तो हम काफी एफर्ट डालेंगे और ये एफर्ट काम में किसके आएगा, जो अपना टाइम स्पेंड करेगा हमारे साथ. तो SD-WAN इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क. तो दिस इज अगेन नेटवर्किंग को जो कम्युनिकेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए. जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो, मैं एक बैंक हूं, सपोज आई गिव एन एग्जांपल HDFC बैंक. मेरा एक बैंक है, मेरे बैंक का एक प्रीमाइसेस है. जो बड़े सिटीज हैं वहां पे क्या है, मेरे रीजनल ऑफिसेज हैं. फिर जो दूसरे छोटे सिटीज हैं वहां पे मेरे दूसरे स्मॉलर रीजनल ऑफिस है. फिर उसके बाद है हर रीजनल ऑफिस के साथ मुंबई सिटी में जैसे 500 ब्रांचेस हैं. तो ये सारे लोगों को एक साथ में कनेक्ट करना और उनका जो डेटा है वो फास्ट घूमे. जैसे अगर एक बंदे ने जाके एक चेक से, इसने मैंने फुरकान पटेल ने एक चेक दिया तजीन को, ओके, और वो है 1 लाख रुपए का, मेरे बैंक में 1,20,000 रुपए. फिर मैंने राहिला को भी एक चेक दिया 1 लाख रुपए का, मैंने सादिया को भी चेक दिया 1 लाख रुपए का. अब वो तीनों जन जाते हैं और एक बैंक से निकालते हैं एक ही टाइम पे. जिसने पहले पंच इन किया उसका पैसा निकल गया, तो वो दूसरा पंच इन करे उससे पहले इट हैज टू बी नोटिफाइड टू ऑल द ब्रांचेस. तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. तो SD-WAN एक ऐसा सिस्टम है जो आज सारे बैंक अप्लाई करें, सो दैट दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन वेरी क्विकली. तो जब आप पैसे निकालने जाते हैं ऐसे कुछ करते हैं, आपको 2-5 मिनट रुकाया जाता है, क्योंकि अगर वो ट्रांजेक्शन किसी और का पहले हो गया, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन वो सेकंड बाय सेकंड नोटिस होता है, ये 1 सेकंड में रेप्लीकेट होगा सारे ब्रांचेस में. तो अगर कहीं और हो गया तो आपका डिक्लाइन होगा. तो अगर फुरकान पटेल ने 3 लोगों को एक ही चेक दिया तो एक ही क्लियर होगा, बाकी 2 डिक्लाइन होंगे. सो दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्क, जो मतलब जो फास्ट ये करे. और ये सॉफ्टवेयर से डिफाइंड होता है कि भैया किसी ने एक पैसे निकाल दिया और बाकी सॉफ्टवेयर सबको अलाइन कर देगा कि भाई पैसे निकल चुके हैं, अकाउंट में 20,000 है, अगर 1 लाख का दूसरा चेक है उसको डिक्लाइन करो. दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल. ऐसे आप सोच सकते हैं उतने वो है. जैसे एक टैक्सी वाला है उबर पे, मैंने अगर वो टैक्सी को बुक कर लिया तो वो टैक्सी के पास दूसरा यूजर का रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं. सो ये सब पूरा जो कनेक्टिविटी है, ओके, दिस इज डन थ्रू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज. अगेन जैसे हमने बोला था, सर्वर को हम वर्चुअलाइज करते हैं कि एक फिजिकल सर्वर है, 8 CPU का सर्वर है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं बैकअप सर्वर का और प्रिंट सर्वर का. अब मेरा प्रिंटिंग का जो काम है वो मेरा सिर्फ एक ही CPU यूज कर पा रहा है, लेकिन जो मेरा बैकअप सर्वर है उसको 4 CPU लगते हैं, और मैंने जो सर्वर खरीदा है वो 8 CPU सर्वर है. तो मैं टोटल 5 CPU यूज कर रहा हूँ का पावर, और 3 मेरा पेंडिंग है. तो पहले क्या होता था कि जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था, टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम अगो, तो वो एक सर्वर का बाकी जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाते थे. तो ये टेक्नोलॉजी इसीलिए एडवांस की गई कि वो जो एक फिजिकल सर्वर की टेक्नोलॉजी है उसको मल्टीपल उसमें यूज किया जा सके, सो दैट डिफरेंट थिंग्स आर यूटिलाइज फ्रॉम दैट वन फिजिकल सर्वर. इसके ऊपर अगर आप आगे देखेंगे तो और डिटेल में है. वैसे ही स्टोरेज में भी काफी इनोवेशन किया गया है. कि जैसे मैंने अगर लास्ट सेशन जिसने अटेंड किया है वो समझेगा कि स्टोरेज में हमने क्या क्या, जैसे पहले फ्लैश ड्राइव नहीं होती थी, पहले होती थी फिक्स्ड मेमोरी, हार्ड मेमोरी. आई थिंक जिन्होंने सेशन अटेंड किया वो ये समझेंगे. आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस बिकॉज इन माई लास्ट सेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट वेरी वेरी डिटेल अबाउट द स्टोरेज इनोवेशंस. If you have not attended, I will be pasting it. We will be posting it online very soon. The last session and this session both together because they are interconnected. तो आपको वो देखने मिल जाएगा. Okay, I think there are some lot of chats, तो मैं एक बार quickly देख लेता हूँ. Okay, so one of the people have asked is
यू नो डू यू हैव टू राइट दिस? अगर आप लिख लेंगे तो बेटर है, नहीं लिखेंगे तो ये भी सेशन पोस्ट किया जाएगा. यू कैन revisit these sessions and maybe learn in more detail. Okay, Tazeen, that is for you. And what is security patch management? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिक्योरिटी, लोग नए लूपहोल्स डेली निकालते हैं, तो नए लूपहोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नया अपडेट डेली करना पड़ता है. सो दैट इज पैच, उसका एक पैच बनता है. मतलब आपका सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी है, बट किसी ने एक नया लूपहोल निकाला, तो उस लूपहोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ी, तो उस पैच को डाल देंगे हम कंप्यूटर पे, तो अगली बार वो लूपहोल यूज नहीं हो पाएगा. सो दैट सिक्योरिटी पैच मैनेजमेंट. ओके, अगेन अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, मतलब हमारे सेशन, हमारे जो चैनल है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं. जो व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल पे इंफॉर्मेशन पास होती है, तो सेशन टाइम्स वाइम सब वहां पे दिया जाता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी हमने टॉक वी स्पोक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इनसाइड अ सर्वर. अब व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर्स? अब ये कंपनी सर्वर्स किस तरह के सर्वर्स यूज करती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है. व्हाट इज अ वेब सर्वर? एक वेब सर्वर इज इट होस्ट्स अ वेबसाइट एंड वेब पेजेस. ओके, और इसमें ये वेब सर्वर होस्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक अपाचे, nginx, माइक्रोसॉफ्ट के IIS सर्वर है, तो दीज आर टेक्नोलॉजीज जिसके, और ये सारी चीजों, ये दीज आर ऑल जॉब्स. आप अपाचे सर्वर के ऊपर स्किल करेंगे अपने आप को, तो आपको उसके रिलेटेड जॉब मिलेंगे, जैसे मतलब वेब सर्वर की जॉब्स होते हैं अलग से. व्हाट इज इट अबाउट? इज एक एंड यूजर है, मैं फुरकान पटेल हूँ, मैंने अपना लैपटॉप खोला, अब मुझे जाना है एक वेबसाइट पे, microsoft.com. मैं जाके टाइप करूंगा microsoft.com, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब सर्वर है वो कहीं पे दुनिया में है. while they would have multiple servers now because it's a very well used host, तो वो सब जगह पे उनके सर्वर्स होते हैं, वो मैं आगे वो भी समझाऊंगा कैसे चलते हैं. बट ये मुझे, मैं जैसे टाइप करूंगा तो वो जाके होस्ट ढूंढेगा इन नेट पे, और वो जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर उसको जहां मिलेगा, वो आपको उधर कनेक्ट करेगा और वहां से डेटा आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट करेगा. सो द होस्टिंग ऑफ अ सर्वर और अ नेट इंटर और अ वेबसाइट is called a web server. This is your web browser, which you can see on the screen, the internet, and this is your web server. So this is how it goes. This is a very simple terminology. मैं आज थोड़ा इसको simple रख रहा हूँ so that you understand. Then what is an application server? Up, it provides the environment for running specific applications. Okay, and those applications connects with the business logic or with your database or with your user data. It could be anything, but these servers are called as application servers. अब मैं एग्जांपल देता हूं कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्क्रीन दिख रहा है. अब यहाँ पे ना कोई लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा है, कोई मोबाइल से कर रहा है, अब कोई डेस्कटॉप से कर रहा है. तो एक अकाउंटेंट है, उसने अपने लैपटॉप पे एक एंट्री पास की कि भैया एक कस्टमर ने, एक उसके कोई कस्टमर ने उसको 1 लाख रुपए का चेक दिया, तो 1 लाख रुपया कंपनी के अकाउंट में आया. अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है, तो उसका मैनेजर जो लैपटॉप पे बैठा है, वो एंट्री जब पास करेगा, तो वो एंट्री जाएगी एप्लीकेशन सर्वर में थ्रू एन एप्लीकेशन. दैट एप्लीकेशन कुड बी टैली, या जो भी उसका अकाउंट से रिलेटेड एप्लीकेशन होगा, उसमें वो डालेगा एंट्री कि मेरा सो एंड सो कस्टमर है, ये कस्टमर का नाम है, ये कस्टमर का नंबर है, उसने ये चेक नंबर से इतना पैसा डाला. वो जाके होस्ट हो गया, सर्वर में सेव हो गया. अब जो लैपटॉप पे उसका मैनेजर बैठा है, जिसको देखना है कि आज के दिन में कितना पैसा आया, तो वो लैपटॉप से जाके वही सर्वर को यूज करके, एप्लीकेशन सर्वर को चेक कर लेगा कि भैया आज के दिन में मेरे पास कितना पैसा है. अब उसकी उसी कंपनी का जो CEO या उसका कंपनी का जो मेन बॉस है, वो अपने टैबलेट है, ये जो टैबलेट है, उस पे उसको देखना है, बिकॉज वो एक एक नाम के नीचे नहीं जाएगा, उसको देखना है कितना पैसा आया, ओवरऑल टोटल कितने लाख हुआ. तो वो अपने टैबलेट पे बैठ के वही सर्वर को कनेक्ट करेगा, वही एप्लीकेशन से वो देखेगा. और फिर जो उसका ओनर है उस कंपनी का, वो अपने घर पे या वर्ल्ड में कहीं भी है, उसको क्या देखना है कि भैया आज धंधा हुआ नहीं हुआ, तो वो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वो तो सिर्फ देखेगा कि भाई धंधा ज्यादा हुआ या कोई खर्चा ज्यादा हुआ, तो वो उसको, तो ये सारी चीजें उनको बताई जाएगी ऑन फ्रॉम दी एप्लीकेशन ऑन दी एप्लीकेशन सर्वर. तो जो छोटी कंपनीज है वो एप्लीकेशन सर्वर बेस्ड काम करती हैं. जो एप्लीकेशन होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर पे रिसाइड करता है, और वहां से आप अपना डेटा देख सकते हैं. In the meanwhile, the team has posted
our WhatsApp channel link. Who all have not joined the channel, please join it now using the link. Okay. Now what is a database server? हमने लास्ट टाइम डेटाबेस के ऊपर भी काउंसलिंग सेशन में काफी अंडरस्टैंडिंग की थी. अब एक बैंक है, बैंक के अंदर मतलब ये मैं एग्जांपल देता हूँ. एक बैंक है, बैंक के अंदर काफी डेटाबेस होता है. इट इज एक डेटाबेस होता है जो मतलब जिन लोगों का उस बैंक में अकाउंट है, तो उसका एक डेटाबेस होता है. अब जरूरी नहीं है कि जिसका अकाउंट है वो ही लोन ले. एक डेटाबेस होता है कि जिन्होंने उनसे लोन लिया है, कुछ का उस बैंक में अकाउंट होगा, कुछ लोगों का अकाउंट नहीं भी होता, एक अलग उसका डेटाबेस. सो देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं. अब जो डेटाबेस के अंदर डिटेल भी होते हैं ज्यादा. जैसे अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो उसने कितने पैसे डाले, कितने निकाले, उसका कैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है. जिसका लोन का डेटा है उसके अंदर अलग ट्रांजैक्शन होते हैं कि उसने कौन से महीने का लोन टाइम पे भरा, कौन सा नहीं भरा. और ये अगर आप देखते जाए तो ये डेटा इतना इमेंस होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते. ये इतना ज्यादा डेटा होता है. तो देर आर मल्टीपल डेटास एंड मल्टीपल फॉर्मेट्स, और ये सारी चीजों को रखना अप्रोप्रिएटली इज डन बाय द डेटाबेस सर्वर. सो दैट अगर आप जाके अपने वेबसाइट पे से यूजर जाके बोलता है कि मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट दो, तो वो आपका एप्लीकेशन आईडी या आपका यूजर आईडी आपका डालोगे तो वो फटाफट जाएगा डेटाबेस सर्वर में से सर्च करेगा, आपका स्टेटमेंट निकालेगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा या ईमेल करेगा. तो ये डेटाबेस होता है ना, तो जो डेटाबेस होता है वो जाके सिलेक्ट करेगा ना आपका क्या है. तो आप सोचो एक बैंक में कितने हैं, 50 लाख कस्टमर्स हैं. अब 50 लाख कस्टमर्स का पूरा महीने का डेटा, अप्रैल का, पूरे साल का डेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर वो लास्ट 5 साल का डेटा. आप बोल नहीं सकते मेरे को डेटा नहीं. मुझे, मैंने अगर बोला नहीं मुझे आज से 5 साल पहले मैंने क्या ट्रांजेक्शन किया था, बैंक के पास वो डेटा है. वो डेटा उसको स्टोर करना है. अब वो आपको चाहिए तो उसको आपको देना भी है वो डेटा. तो वो डेटा 5 से 5 साल पहले आपने अप्रैल के महीने में क्या ट्रांजेक्शन किया था, तो वो अगर आप ऐसे मैन्युअली ढूंढने जाओगे तो नामुमकिन हो जाएगा. तो ये और अगर आपने ऐसे ही एप्लीकेशन में छोड़ दिया तो भी डिफिकल्ट होगा. तो डेटाबेस सर्वर्स क्या करते हैं, डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि उसका एक्सेस होना इजी हो जाए. ओके, एंड दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट सेशन, डेटाबेस इज अगेन वन मोर फील्ड विच हैज वेरी हाई पोटेंशियल, जिसमें जॉब्स भी ज्यादा हैं और लोग ये भी करते हैं. एंड मैं इसके ऊपर भी सेशंस लेना चाहता हूँ. आप डिसाइड करोगे, मुझे बताओगे विच सेशंस यू वांट, आई विल बी परफॉर्मिंग दोस फॉर यू. देखो ये मैंने जो ऊपर समझाया ये उसका डेटा है. जैसे अभी ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, कोई मोबाइल से कर रहा है, कोई कंप्यूटर से कर रहा है. अब कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है लोन का एप्लीकेशन, तो वो एक सर्वर पे है. कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है फोन बैंकिंग का, वो दूसरे सर्वर पे है. कोई दूसरा तीसरा एप्लीकेशन यूज कर रहा है कि कुछ और चीज के लिए, तो वो तीसरे सर्वर पे है. बट ये जो अंदर जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, वो सारे डेटा जो उठाते हैं वो एक ही डेटाबेस सर्वर होता है जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर्ड होता है. तो दैट इज योर डेटाबेस सर्वर. ठीक है, आई प्रोग्रेस. नाउ फाइल सर्वर्स. अब जैसे अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास है ना, अभी हम हमारे डेस्कटॉप पे फाइल्स, अपने खुद के फाइल्स होते हैं, पर्सनल फाइल्स है, रेज्यूम्स है, मीडिया है, सॉन्ग्स, मूवीज, हम ये सारी चीजें डालते हैं. बट एक कंपनी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, स्कैन्स होते हैं, प्रिंट आउट होते हैं, इनकमिंग फैक्स, परचेज ऑर्डर्स, जो परचेज ऑर्डर हमारे पे आए हैं, मतलब जितना चाहिए उतना होता है. वो सारी चीजों को सेव करने के लिए कंपनी में एक अलग सर्वर होता है, क्योंकि वो डेटा आपका पर्सनल डेटा नहीं है. जब आप नौकरी कर रहे हैं तो वो डेटा आपकी कंपनी का डेटा है, तो वो आप अपने घर नहीं लेके जा सकते. तो वो सारा डेटा जब आप सेव करते हैं तो वो सेव होता है फाइल सर्वर में. तो अगर वो सपोज है अगर अनमार शेख का डेटा, तो एक वो फाइल सर्वर में एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बनती है उसके नाम की, और वो वहां पे उसका डेटा सेव होता है, सो दैट टुमारो इफ ही वांट्स टू एक्सेस द डेटा, उसको अपना डेटा दिखे. अगर कोई दूसरा बंदा है जो उसके साथ काम करता है जिसका नाम है सेहारिश, तो वो उसका डेटा एक्सेस नहीं कर सके. लेकिन अगर अम्मार का कोई बॉस है, ओके, जिसको दोनों का डेटा एक्सेस करना है, अम्मार का भी करना है और सेहारिश का भी करना है, तो ही हैज गॉट एक्सेस टू बोथ द फाइल्स. तो वो इस बंदे का भी कर सकता है, उसका भी कर सकता है. तो दिस इज व्हाट इज अ फाइल सर्वर. आज सारे ऑर्गेनाइजेशन मेल पे चल रहे हैं. जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जीमेल यूज कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट मेल यूज कर सकते हैं, हॉटमेल यूज कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल फ्री मेल साइट्स दैट आर अवेलेबल. बट जो थोड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपना खुद का मेल आईडीज यूज करते हैं, अपने खुद के मेल सर्वर्स होते हैं. तो एक सर्वर बनाया जाता है, बिकॉज मेल के अंदर मेल का डेटा होता है कि भाई इतने मेल्स मेरे फुरकान पटेल के नाम पे इतने मेल्स आए, वो भी तो सब स्टोर होता है ना. जैसे अगर मैं मेरा जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई शो यू,
मेरा मेल का मानसिक, मतलब एक, अब ये देखो फुरकान पटेल को कितने मेल्स आए, ये मतलब मेल्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, मतलब दीज एक एक दिन में 500 500 हजार मेल्स भी आ जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ मेल्स, जब फुरकान पटेल को हजार एक एक महीने में 10,000 मेल आए, तो ऐसे मेरे जैसे अगर 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप सोचो कितना मेल्स और किसी में अटैचमेंट्स होते हैं। सो कितना मेल्स होता है, तो इसके लिए एक अलग से मेल सर्वर बनाया जाता है। सो मेल सर्वर टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो देयर, दे यूज एसएमटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जब आप नेटवर्क में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा तो बताया जाएगा कैसे ये प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं टू सेंड एंड रिसीव मेल्स। ये एक अलग फील्ड है मेल की। और इसमें अगर आप देखो तो लोटस नोट्स करके एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है जो बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। दीज आर सॉफ्टवेयर, दीज आर नॉट, यहाँ पे मेल आईडीज नहीं, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें मेल चलता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, पोस्टफिक्स है, ऐसे बहुत सारे हैं, एमडेमिन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आपकी कंपनीज मेल वो बनाती है, जहाँ पे आप मेल यूज कर सकते हैं। देन देर आर गेमिंग, गेमिंग और जो जो हमने लास्ट टाइम के सेशन में डिस्कस किया था जीपीयूज के बारे में, तो ये भी काफी चल रहा है। देर आर लॉट ऑफ गेम्स, मतलब जितनी आज मूवीज बन रही है उससे बहुत ज्यादा गेम्स बन रही हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री टुडे। इसीलिए गेम और ये जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ना, वो बहुत कंटेंट हैवी एप्लीकेशन होते हैं, तो उसके लिए जो सर्वर की टेक्नोलॉजी भी होती है वो थोड़ी अलग लगती है, जिसमें जो विजुअल इम्पैक्ट होता है या जो हाई डेफिनेशन वीडियोज होते हैं वो होते हैं। सो फॉर दैट यू नीड हायर लेवल ऑफ सीपीयू, यू नीड हायर लेवल ऑफ वीडियो ग्राफिक्स, यू नीड हायर लेवल ऑफ बैंडविड्थ, तो उसके सर्वर्स अलग होते हैं, तो इसके लिए गेम सर्वर अलग होता है। हार्डवेयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल फाइल सर्वर से या मेल सर्वर से। मेल सर्वर और फाइल सर्वर ये ज्यादा डेटा से, डेटा ज्यादा होता है, प्रोसेसिंग उसमें कम होता है बिकॉज उसमें सिर्फ सेव करना है। बट गेम सर्वर में प्रोसेसिंग ज्यादा होता है और उसमें वीडियो प्रोसेसिंग ज्यादा होता है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस अलग होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट गोइंग फॉरवर्ड, आगे मैंने और उसको एलैबोरेट किया है। तो ये जैसे आपके प्लेयर्स हैं, अभी आप कोई भी, आप रोज देखते हो लूडो खेलते हैं लोग, काफी गेम्स आ गई हैं, जितनी चाहिए उतनी गेम्स हम सब खेलते हैं। तो दीज आर प्लेयर्स, दीज आर मल्टीपल गेम सर्वर्स, और गेम बैकएंड में एक ही होता है। ओके, बट अलग अलग सर्वर्स पे सेशंस क्रिएट कर किए जाते हैं। और ये जो बैकएंड सर्वर होता है वो काफी बड़ा हैवी प्रोसेसिंग वाला होता है। ये जो आगे वाले सर्वर्स होते हैं उसके ऊपर उसका खाली फ्रंट स्क्रीन आता है, बट जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो बैकएंड में हो रहा है कहीं पे। प्रॉक्सी सर्वर, अब ये प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ना, इट एक्ट्स एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर्स एंड द इंटरनेट, सो दैट हाँ जो एक यूजर है वो उसको डायरेक्टली सर्वर का खाली आगे का जो कंटेंट है, जैसे आप अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओगे तो आपको उसके वेबसाइट पे सिर्फ वो दिखेगा, उसके पीछे सर्वर पे क्या डेटा है आप वो एक्सेस नहीं करोगे। तो वो रोका जाता है थ्रू अ प्रॉक्सी सर्वर। ये भी एक फील्ड है। ये इसमें इस फील्ड में प्रॉक्सी सर्वर पे काफी सारा सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन भी होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दीज आर थिंग्स इंटरलिंक्ड। और सर्वर टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस है सारी टेक्नोलॉजीज की। तो अंडरस्टैंडिंग दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज अ प्रॉक्सी सर्वर, तो वो आपको अलाउ नहीं करता वो सर्वर का पूरा कंटेंट देखने के लिए, वो सिर्फ आपको वेबसाइट की वेब्स की स्क्रीन दिखाएगा। अब जो मैंने वर्चुअलाइजेशन जो ऊपर समझाया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था आज के सेशन का, कि देयर इज वन फिजिकल सर्वर, ओके, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, that one physical server using an hypervisor is converted into three different physical servers। मतलब अगर ये 10 सीपीयू का सर्वर है तो मैंने इसको एक सीपीयू एक एक वर्चुअल सर्वर को दिया तीन, दूसरे को दिया तीन और चौथे को दिया चार सीपीयू, तो मेरे तीन सर्वर्स बन गए वर्चुअल। और मैं तीनों पे अलग अलग काम करवा सकता हूँ। एक को बना सकता हूँ फाइल सर्वर, एक को बना सकता हूँ प्रॉक्सी, एक को बना सकता हूँ बैकअप। तो व्हाट आई हैव डन इज आई एम यूजिंग माय वन हार्डवेयर टू डू टू थ्री वर्क ऑफ थ्री सर्वर्स। तो मैं अपने रिसोर्स का पूरी तरह यूटिलाइजेशन करूं, जो पैसा मैंने ये एक फिजिकल सर्वर लेने में खरीदने में लगाया है वो मैं पूरी तरह यूज कर सकूं। दूसरा एडवांटेज ये है कि एक फिजिकल सर्वर होगा हायर कैपेसिटी का, तो वो जगह भी कम घेरेगा, पावर भी कम घेरेगा। तो जो बड़ी कंपनीज होती है वो ये सारी चीजों को ध्यान में रखती है क्योंकि जगह भी कॉस्टली है। ओके, इलेक्ट्रिक कूलिंग लगती है, वो फिर उसकी सिक्योरिटी लगती है, उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए लोग लगते हैं।
तो टू अवॉइड रिड्यूस दैट काइंड ऑफ रिस्क एंड थिंग्स, एक फिजिकल सर्वर को ही आपको अगर मैनेज करना है तो उसके ऊपर हाइपरवाइजर डालोगे, वर्चुअलाइजेशन करोगे और उसको मल्टीपल चीजों के लिए यूज करोगे। आई जस्ट टेक अ मिनट्स ब्रेथ। आप लोग तब तक अपना थॉट गैदर करो। व्हाट इज नेक्स्ट इज अ डीएनएस सर्वर। अब अगर मैंने आप मेरा फर्स्ट टेक्निकल सेशन, जो लास्ट टाइम वाला सेशन था टेक्निकल सेशन, उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1 नंबर्स में मेजरली अंडरस्टैंड करता है। तो जैसे Microsoft.com एक वेबसाइट है, बट वो वेबसाइट, हर वेबसाइट के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। व्हेन वी गेट इनटू नेटवर्क डिटेल्ड कोर्सेज, तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में भी बताया जाएगा, आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो हर इसके पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। तो व्हेन आई टाइप Microsoft.com, तो एक सर्वर होता है कहीं पे बीच में, जो वो Microsoft.com के कौन से आईपी एड्रेस से लिंक्ड है वो देखता है। और जब वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो वो Microsoft.com सर्च नहीं करता, वो आईपी एड्रेस सर्च करता है। और वो आईपी एड्रेस कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड में। सो दैट इज कॉल्ड अ डोमेन नेम सर्वर, विच डज द डोमेन नेम रेजोल्यूशन। वो डोमेन नेम को, जो आपका नाम है Microsoft.com को, उसको रिजॉल्व करता है और एक आईपी एड्रेस में उसको मिलता है। और फिर वो आईपी एड्रेस को जाके नेट पे सर्च करता है। तो इट इज कॉल्ड अ डीएनएस सर्वर। व्हाट इज एन एफटीपी सर्वर? इट्स अ फाइल, एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। जैसे अगर आपको नॉर्मल डेटा ट्रांसफर करना है ना, तो आप है ना नॉर्मली भेज सकते हो। बट जहां पे फाइल की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, ओके, तो फिर आप नॉर्मल नहीं भेज सकते, वो आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता, आपका नेटवर्क अलाउ नहीं करता, प्रॉब्लम्स देता है। तो उसके लिए फाइल ट्रांसफर के लिए अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर होते हैं, जिसकी नेटवर्क बैंडविड्थ ज्यादा होती है। वह सब चीजों के लिए अलग अलग सर्वर क्यों होती है? क्योंकि उसकी हर सर्वर का एक अलग काम है। जैसे आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है, सर्वर का काम है कि वो आपका डेटा ट्रांसफर करे, तो उसमें जो चीजें होंगी, उसमें वीडियो ग्राफिक अडाप्टर हैवी नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। बट उसमें जो नेटवर्क अडाप्टर होगा और उसके अंदर जो नेटवर्क कार्ड्स होंगे, जो नेटवर्क केबल होंगे, जो कनेक्टिविटी होगी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, बिकॉज दैट विल अलाउ यू टू ट्रांसफर अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड लॉट ऑफ डेटा। ठीक है, तो दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिमिलरली यू हैव अ प्रिंट सर्वर। बड़े बड़े कंपनीज में प्रिंट सर्वर होता है, बिकॉज प्रिंट रिक्वेस्ट जनरेट होती रहती है। अब कितने बार कुछ कंपनीज को ऐसा होता है कि मेरे बंदों ने प्रिंट क्या किया, वो अपने घर का रेज्यूम या अपने घर का प्रोजेक्ट्स, बच्चों का प्रोजेक्ट तो प्रिंट करके नहीं लेके जा रहे, तो अभी प्रिंट सर्वर बना दिया गया है कि वो आपका डेटा रिकॉर्ड करेगा कि भैया फुरकान पटेल ऑफिस में आता है तो क्या प्रिंटिंग करता है, तो मेरा मैनेजर चाहे तो वो देख सकता है। तो दीज आर थिंग्स, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट। वैसे ही जैसे एफटीपी सर्वर था, वैसे ही मीडिया सर्वर है। जो अगेन मीडिया सर्वर क्या करेगा, इसमें नेटवर्क बैंडविड्थ ज्यादा होता है, प्लस इसमें वीडियो भी अच्छा होता है, बिकॉज ये सर्वर आपको पिक्चर दिखाता है, गाने सुनाता है। तो दीज आर मीडिया, मीडिया कंटेंट्स, ऑडियो वीडियो कंटेंट्स। एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अच्छा, मीडिया सर्वर्स और वॉइस ओवर आईपी, जैसे अभी आपने देखा व्हाट्सएप ने चालू कर दिया वॉइस ओवर आईपी, वीओआईपी हम जिसको बोलते हैं, वॉइस ओवर आईपी। मतलब आप इंटरनेट पे, आप फोन कॉल पे बात कर रहे हो, बोटेम यूज कर रहे हो, आपकी फैमिली आउट ऑफ इंडिया है और उधर व्हाट्सएप चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे बात करते हो। यू डोंट नीड टू कॉल थ्रू योर फोन, योर फोन्स आर एक्सपेंसिव, बट वॉइस ओवर आईपी इज नॉट एक्सपेंसिव। सबके घर में वाईफाई है, so that is voice over IP, and for that you need media servers। और ये सारी टेक्नोलॉजीज अलग अलग टेक्नोलॉजी है, सारों में फील्ड है, सारों में काम है। हर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिटेल्ड आप काम कर सकते हो, और ये सारी चीजों पे आपके पास जॉब्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली बैकअप सर्वर है, आपका डेटा है, अगर वो सर्वर, देखो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खराब हो सकता है। तो अगर आपका सर्वर खराब हो गया तो वेयर विल यू गेट दैट डेटा? तो उसके लिए बैकअप सर्वर होता है कि जो आपका डेटा है वो डेटा को बैकअप किया जाए और दूसरी जगह पे भी रखा जाए, कि अगर इस सर्वर में कुछ खराबी आती है तो आपका डेटा लॉस नहीं होता, आपका डेटा मिल जाता है। मतलब अगर सोचो एक बैंक का डेटा डेटा सर्वर अगर लॉस हो गया, और मतलब मैं जाके बोलूंगा नहीं मेरा तो 1 करोड़ रुपया था, जबकि मेरा उसमें उतना पैसा था ही नहीं, तो उनके पास वो प्रूफ होना चाहिए। अगर सर्वर डेटा लॉस हो गया, हाउ विल दे डू इट? सो दे हैव मल्टीपल बैकअप सर्वर्स। तो जैसे आपका काम वैसे आपका बैकअप सर्वर्स। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना इंपॉर्टेंट डेटा, उतना ज्यादा बैकअप इंपॉर्टेंट है। नाउ लोड बैलेंसर, नाम से ही समझ में आता है लोड बैलेंसर क्या करता है। लोड को बैलेंस करता है। जैसे एग्जाम्पल,
अभी हम देखें तो सपोज व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप अगर एक ही सर्वर पे चलेगा, तो अगर 50,000 यूजर एक ही टाइम पे काफी सारे कॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसकी बैंडविड्थ चोक होने लगती है। तो ये जो लोड बैलेंसर सर्वर होता है वो चेक करते रहता है कि ठीक है, ये देखिए, ये है यूजर्स लेफ्ट पे, ये है इंटरनेट, ये बीच में हमने लोड बैलेंसर ला दिया। अब लोड बैलेंसर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि भैया पहला जो सर्वर था उसके पूरे रिसोर्सेज, तो पूरे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, वो 80-90% यूटिलाइजेशन पे आ गया है। अब ये चोक होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका जो उसके बाद यूजर्स आएंगे उसको सेकंड सर्वर पे डाल देगा। ये भी अगर भरने लगा तो वो थर्ड सर्वर पे, तो वो लोड को अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स स्प्रेड कर देता है, विच इज अ लोड बैलेंसर। इट इंप्रूव्स अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब चीजें चलती रहेंगी इवन द लोड। जैसे अगर एक बैंक है, अभी दिवाली में लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेजेस ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे लोड ज्यादा होता है। जैसे अभी अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था, तो लोग ज्यादा अमेजोन से खरीद रहे थे, तो जब जब पीक लोड आता है तो लोड को बैलेंस करना पड़ता है। सो दिस इज वेयर अ लोड बैलेंसिंग सर्वर इज बीइंग यूज्ड। आजकल तो काफी कंपनीज आ गई हैं जो सीधा सीधा उन्होंने अप्लायंस ही बना दिया, विच इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर, जो ऑटोमेटिकली लोड को बैलेंस करता है। अगेन, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी काफी डिटेल किया जा सकता है, बट आज मैं आपको सर्वर की ओवरआर्चिंग टेक्नोलॉजीज बता रहा हूँ, आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो ये चीजों से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आप इसको बार बार पढ़ोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेशंस। कंटेनर सर्वर्स, जैसे हमने आगे वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात की, मैंने बात की थी कंटेनर्स के बारे में। वर्चुअलाइजेशन पूरे सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स को वर्चुअल मल्टीपल सर्वर्स बना देता है। वैसे ही सिंपल कंटेनर्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को अलग अलग पीस बाय पीस करते हैं। सो दोज आर कंटेनर सर्वर्स, एंड आई एक्सप्लेन डॉकर एंड क्यूबरनेट्स आर एग्जांपल्स। अब मैं क्विकली थोड़े से है ना, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओईएम्स हैं, ओके, जो सर्वर्स बनाते हैं, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। आई विल नॉट गेट इन टू आर्किटेक्चर, बिकॉज ये आर्किटेक्चर्स भी बहुत डिटेल होते हैं। तो पहला है, जो आज की डेट में सबसे मोस्ट पावरफुल सर्वर है जिसपे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं, वो है आईबीएम का पावर सर्वर। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पावर सर्वर के ऊपर एआईएक्स टेक्नोलॉजी होती है, ओएस की। इसकी इतनी डिमांड है इंडस्ट्री में कि अगर आप एआईएक्स के ऊपर अगर आप एजुकेशन लेते हैं, whether it is a female or a male student, you have a very strong career ahead. I can vouch for it. Why? I don't want to say that, but I can vouch for it. It has very good career options. Very, very reliable, scalability, one of the most powerful servers that are available at reasonable prices for companies or our power servers. मैंने थोड़े पिक्चर्स डाले हैं। छोटे सर्वर्स होते हैं 3U, छोटे रैक सर्वर्स होते हैं, बड़े होते हैं, और ये बड़े बड़े सर्वर्स भी होते हैं, मेन फ्रेम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके कंप्यूटर कंपटीशन में देर आर अगेन एचपी के होते हैं। एचपी, उसको जैसे उधर आईबीएम का पावर नाम दिया है, एचपी को नाम दिया है सुपरडोम। आईबीएम में जैसे पावर का प्लेटफॉर्म होता है, वैसे ही इस इधर ये इंटेल यूज करता है। आईबीएम का खुद का प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है, बट एचपी इंटेल का प्रोसेसर यूज करता है। आईबीएम का खुद का प्रोसेसर भी प्रोप्राइटरी है, इसीलिए वो ज्यादा चल रहा है मार्केट में। जस्ट एग्जाम्पल पिक्चर डाला है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली डेल ऑल्सो हैज पावर एज सर्वर्स, बट अगेन डेल इज ऑल्सो यूजिंग इंटेल और मे बी एएमडी, इंटेल का जो कंपटीशन है। तो ये भी इंटेल के सर्वर्स यूज करता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं ये भी। और कंपोनेंट्स मैंने लास्ट सेशन में बताए थे, जो कंपोनेंट्स डेस्कटॉप में लगते हैं वही हायर लेवल के कंपोनेंट्स उसी के सर्वर में लगते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट। लास्ट वाला सेशन जिसने नहीं अटेंड किया, प्लीज अटेंड करो। So these are your power edge servers. Similarly, Oracle Spark servers. अब Oracle ने IBM के जैसे अपने खुद के प्रोसेसर बनाए हैं। They are not using Intel processors. So these are Spark servers. और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो भी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है आईबीएम के जैसे, वो है सोलारिस। अगेन अ पिक्चर, फुजित्सु। फुजित्सु भी इंटेल यूज करता है। फुजित्सु बेसिकली सर्वर भी बनाने लगा है, बट फुजित्सु इज मेजरली नोन फॉर देयर स्टोरेज। लिनोवो, आपने लिनोवो के लैपटॉप डेस्कटॉप देखे होंगे, लिनोवो भी सर्वर्स बनाता है। इंटेल सर्वर्स, अगेन दे यूज इंटेल। सिस्को,
सिस्को इज बेसिकली अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन. नेटवर्क पे ज्यादा इनका फोकस है. इनका 95% से ज्यादा बिजनेस भी नेटवर्क का है, नेटवर्क रिलेटेड है. बट दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सर्वर्स नाउ, यूनिफाइड कंप्यूटिंग सिस्टम. और वो भी इंटेल को ही यूज करते हैं. ये सारे सर्वर्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं. वी विल गेट इनटू डिटेल्स इन द अपकमिंग सेशंस. But these are the major leading manufacturers today in the industry. An example for you. So, हमारा 1 घंटा पूरा हुआ. थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, बट आई वॉन्टेड टू गो स्लो. आई वॉन्टेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड. अब मैं चाहूंगा कि अब आप मुझे अपने क्वेश्चंस बताएं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. तो पहला क्वेश्चन है फीनिक्स नाम से. मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे वी नीड स्टूडेंट्स. तो आई एम श्योर कि जो बंदा है, आप जो है मिस्टर फीनिक्स, नेम इज नॉट फीनिक्स, प्लीज अपना नाम बताएं, बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट विथ यू. ओके, सो प्लीज put your real name, put your correct phone numbers, put your correct email IDs. Okay, it's important. But still, I will answer your question. I belong to biotechnology field, so how would this meet be helpful for me? See, if you are from biotechnology, you would be using applications to, meet your requirements in terms of whatever work you are doing. Ab biotechnology mein bhi there are multiple, different fields in itself. So, आप जो भी यूज करते हैं उसमें भी फाइनली कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा, डेटा होगा, सर्वर होगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो मे बी यू आर नॉट इनटू आईटी, but still you can use you will use this to understand and use that technology in a better way. I wouldn't, if I were you, I wouldn't get into a detailed session of any of these topics because I'm in biotechnology field. However, I would still want to understand what technology is all about. Okay, because my field is a little different. Okay, Fawad, you please explain VoIP a little more. Okay, what is VoIP? It's voice over IP. सवाल आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट करूंगा इस पे. हम जब एक मोबाइल यूज करते हैं, ओके, अब मोबाइल यूजेस अ रेडियो टेक्नोलॉजी. ओके, तो जो जिसपे हम बात करते हैं, ओके, जैसे हमारा जो कॉल होता है वो रेडियो टेक्नोलॉजी होती है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट आईपी टेक्नोलॉजी, तो वो होता है आपका नेट, विच इज यू आर गोइंग टू बी योर 2G 3G 4G 5G. अब when you are using radio technology, आपका थोड़ा, आपको लगता है आपका आवाज क्लियर है, चीजें चल रही है, you can immediately pick up the phone and call. But today voice over IP has become so advanced कि some people find it कि talking on WhatsApp is easier. So that is talking on the using the internet. जैसे अगर आपका सिम नहीं है बट आपके पास एक फोन है जिसपे आपका WhatsApp है, यू कैन स्टिल यूज, एंड आपका WhatsApp फंक्शन है, वाईफाई यूज करके भी आप बात कर सकते हैं. तो यू कैन यूज आईपी नेटवर्क, not radio technology, but IP technology, network technology, to speak or to talk or to transfer data. So it is transferring data in any format. What is voice? When voice is converted into a phone, it is converted to data and then transferred through the 2G, 3G, 4G, 5G network. So that technology is, what is it? It's data. That data could be voice, it could be video, it could be files, it could be anything. So transferring voice over a IP, over a network, is voice over IP. Fawad, am I clear in what I explained, or you need more explanation? Please put it in the chat box. Explain DNS more. Okay, every server, अभी जैसे google.com है, microsoft.com है, apple.com है, there are so many thousands and thousands of websites. मतलब मैं तो शायद, मतलब अगर कोई हम गूगल करें तो पता चले कि हाउ मेनी वेबसाइट, देयर वुड बी मिलियंस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स. अब जब मैं ना इतनी मिलियन वेबसाइट्स है, और मैं एज अ यूजर जाता हूं अपने वेब ब्राउजर पे और उस पर डालता हूं कोई भी एक वेबसाइट का नाम, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि भाई कहाँ जाना है? ओके, वो थोड़ी ढूंढेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम,
as I told you, it is converted into a IP address. IP address is a 12 digit नंबर होते हैं, जैसे 192.168.100.1003, मतलब इतने नंबर्स होते हैं ये. ओके, दिस आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आईपी. तो ये नंबर्स है ना, हर नंबर एक पर्टिकुलर डोमेन को अटैच्ड होता है, तो नंबर को ढूंढता है, वो उस आईपी को ढूंढता है. तो जो पहले के 3 नंबर होते हैं, वो अगर 1 मिलियन वेबसाइट है, तो उसमें से 500,000 वेबसाइट्स के सेम पहले के 3 डिजिट सेम होंगे, तो उसको सिर्फ बाकी में ढूंढना पड़ेगा. तो वैसे वो आईपी नंबर से उसको शॉर्ट करता है, और उसको बोलते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन. सो अ डीएनएस इज, यू रिजॉल्व अ डोमेन नेम in a faster way, so that through millions and millions of websites you are able to pinpoint to the exact website that you have named. That's called domain name resolution, and that is done through a DNS server. So if you need more, please please put it in the chat box. I'll try to answer if I can. Phoenix, thank you, आपने अपना correct नाम डाला. I would request you join the channel. I think it will help. Sir, what is cost effective and what vendor limitations? But I didn't get your question, Tazeen. Cost effectiveness in what perspective? मतलब आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है, मुझे लग रहा है. If you can just elaborate your question, I will surely answer that. Yeah, instead of a phone number, yeah, you can say that. Correct, फवाद, you can say that. That यहाँ पे आपका फोन नंबर तो देखो वैसे भी, मतलब आपको व्हाट्सएप डालना तो लग ही रहा है. But you know, your IP is defining your, or not only your IP, your username with WhatsApp is defining, transferring your data. तो जो WhatsApp है वो है एक एप्लीकेशन. वो एप्लीकेशन में आपके, वो इट इज नॉट एन आईपी दैट इज असाइंड टू यू. वो एप्लीकेशन आपको कुछ नंबर या उनका जो भी मेथोडोलॉजी होगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होगा, उससे आपको आइडेंटिफाई हो रहे हो और मैं आइडेंटिफाई हो रहा हूँ. फिर आप और मैं जब बात करोगे तो डेटा आपके नंबर या मेरे नंबर के बीच में ट्रांसफर होगा. ठीक है. तजीन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी मतलब हाफ एंड सिंप्लीफाइड ऑपरेशन. प्लीज पुट अ मोर क्लियरर क्वेश्चन, एक सिंगल उसमें डालो, सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. सो फवाद, गुड, आई yeah, good, I was able to explain you. Yes, you are correct in saying that basically it is a unique address to identify a website. Correct, you are correct in saying that. थोड़ा और डिटेल में, मतलब आई एम इंक्लाइन टू गिव यू अ लिटिल मोर डिटेल, बट ये और थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा. आई ट्राई टू डू दैट इन सिंपल वर्ड्स. जैसे Microsoft.com. अब Microsoft.com एक सर्वर नहीं होगा, देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ सर्वर. बट जो पहला सर्वर होगा ना, वो आप जब उसके आईपी पे जाओगे ना, तो वो डीएचसीपी बोलते हैं उसको, डायनेमिक होस्ट वो होता है. तो वो आपके लोकेशन से जो सबसे नजदीक सर्वर है, उधर आपको ऑटोमेटिकली राउट करता है to that Microsoft server. So that is called DHCP, वो automatically करता है. So this again, when we get into more detailed से technical sessions, मैं और detail में explain कर पाऊंगा. I think we are overdue with time, so I want to answer more questions. But Fahad, your questions are good. I think आप नेट पे पढ़ो, इसमें आपको काफी जानकारी मिलेगी. And I will also be able to answer you in the upcoming sessions. Sir, it was a part of advantages and disadvantages of what? See, every particular server has its own advantages. Every particular technology, जैसे IBM की भी कुछ advantages होंगी, power की और disadvantages, ये सबकी होती हैं. Okay, and depending on your usage, जब आप काम करना शुरू करोगे, you will keep understanding what are the advantages, what are the disadvantages. जैसे हमको पता है कि अगर हम घर में एक एलसीडी यूज करेंगे और एक एलईडी यूज करेंगे, तो दोनों में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. हम अगर एक बाइक और कार में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, तो एज यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, यू अंडरस्टैंड अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो टेक्नोलॉजी भी वैसी है, जितना आप उस पर काम करोगे उतना आप समझोगे. Fawad, I hope I was able to answer your questions, but be inclined. आप लर्निंग के लिए जितना इंक्लाइंड रहोगे, जितने क्वेश्चंस पूछोगे, मैं चाहूंगा मैं आंसर कर सकूं, बट टाइम इज अ लिमिटेशन. आप सारे सेशन अटेंड करो. मैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आप लोग चैनल पे और ग्रुप पे डालते हो, मैं उसमें से भी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की इन माय अपकमिंग सेशंस.
So guys, thank you very much. आप लोगों ने time दिया. I will take 5 minutes more, okay? Because all the students that had joined initially, all are still present. मेरा एक request है. हम यहाँ पे एक अच्छी सोच लेके UMO आया है. अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उस सीख को आगे बढ़ाओ. आप और समझो उसको. And please pass this on to your friends, colleagues. Let them use the channel links to. किसी का फायदा होगा, मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ, किसी का फायदा होगा, हमारा नुकसान नहीं है. किसी का भला होगा, ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा करेगा. Do good and that will return back to you, okay, in a good way. So please do that. Please keep learning. Please keep joining. Stay connected with us. And as I told you, very soon, people who are on our channels, you will get to know what all we are planning in terms of personality development and other sessions regarding grooming, communication. I'm sure it will help you a lot. Thank you very much. Jazakallah khair.